Good morning, student. Again, welcome in my class. Now, the study we are discuss about the polynomial and degree of the polynomial and coefficient, constant, and variable. Now, today we will discuss about the question. From question number 1 to 3 we have done already in our previous class. Today we will try to solve the question number 4. Now question number 4 is saying write the degree of each of given equation. We have to write what is the degree of the each of the given equation. We have already discussed कि degree the maximum power of a variable, किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज डिग्री ऑफ एक्स. ओके, डिग्री ऑफ एक्स व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स? द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 3. अब वी नो विच हैव 3 डिग्री इज नोन एज द क्यूबिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर second is given. Second 5t minus under root 3. Degree of t. What is the maximum power of the t? If there is no any power, then we always consider degree is 1. By default कुछ भी नहीं था वहाँ पे हम 1 consider करते हैं. So degree is 1. Now the fourth one, last one is the degree. We know if we multiply any number by 1, it means we again get 3. और आपको ये भी पता है कि जब किसी भी वेरिएबल के पावर 0 होता है तो उसकी डिग्री, अगर किसी की डिग्री 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगा, तो ये आप 3. कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 लेते हैं. तो इसकी डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ x is equal to 0. Okay, it is a final result of the question number 4th है. अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको है क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये वी हैव डिस्कस ऑलरेडी द on the behalf of the degree. If any expression which have 1 degree, that is known as the linear equation. If any expression has 2 degree, it is known as the quadratic equation. If any expression has 3 degree, it is known as cubic equation. Okay, let us start question number 5. So next question is question 5. We have to find the degree of the following given equation. See, the degree of x is 2. We know if any expression which have 2 degree, it is known as the cubic polynomial. So we can say, sorry, if degree is 2, it means it is a quadratic equation. We can say it is the quadratic polynomial. Okay, ये quadratic polynomial है. Okay, if an expression है 3, इसकी डिग्री क्या है? 3 है, तो ये आपका क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. राइट. सेम, व्हाट इज द डिग्री ऑफ y? द डिग्री ऑफ y इज अगेन 2. वी नो इफ एनी एक्सप्रेशन विच हैव 2 डिग्री इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलरली यू कैन आल्सो ट्राई इट. जैसे व्हाट इज द डिग्री? इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ t 1 है, जिसका 1 होगा उसको बोलते हैं लीनियर. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा. और जिसकी डिग्री 3 है इसको फिर से हम क्या बोलेंगे? ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. राइट. रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन ट्राई. तो आई हैव आल्सो डिस्कस इन द आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द polynomial. If any expression have the greater power 1, it means degree is 1 is known as the linear. Which have 2 degree is known as the quadratic. Which have 3 degree is known as the cubic, and which have 4 degree is known as the biquadratic polynomial. So today
you will try remaining question. Now we will start zeros of the polynomial. Okay, what is the zeros of the polynomial? Zeros of the polynomial is here. If we put any expression, if we get its result is 0, then we can say it is the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial, अगर suppose fx इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसको पुट करने पर अगर इसका मान 0 आता है, तो देन वी कैन से इट इज़ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल एट x बराबर 0, x बराबर -1, राइट. देन f -1, ये आपका -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और प्लस का 1, ये आपका 1 आएगा और -2 आएगा और प्लस का 1, 1 1 2 और -2, इट इज़ 0. इफ़ वी पुट एनी वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन, इफ इट्स रिजल्ट इज 0, देन वी कैन से इट इज़ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये क्या होगा, ये zeros ऑफ पॉलिनोमियल. यस, ठीक है, zero of a polynomial. ठीक है, अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर उसके पुट करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 आती है, सो वी कैन से इट इज़ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये zeros ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा. अगर लेकिन हाँ, ये कभी किसी क्वेश्चन में सपोज ऐसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड एट x 1 पे. अगर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ 1 होगा इसकी वैल्यू पुट करते हैं. 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 1, तो ये 1 प्लस का 2 प्लस का 1, दैट इज़ अ 4. अगर किसी इक्वेशन पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एट दिस गिवन इक्वेशन, तो जब भी किसी f(x) की वैल्यू पूछेगा उस एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू पुट करने पर जो इसका रिजल्ट रहता है तो वो उसकी वैल्यू कहलाता है. बट जीरोज़ बोलेगा तो जीरोज़ का मतलब अगर उस गिवन वैल्यू में अगर एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर इसका रिजल्ट 0 आता है, देन वी कैन से इट इज़ zeros. बट इसका ये आपका zeros नहीं है, तो व्हाट. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इस इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं. रूट मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन, हाउ मेनी रूट्स आर देयर. x की मैक्सिमम पावर जितने डिग्री होते हैं उतने उसके रूट होते हैं. रूट क्या होता है, नंबर ऑफ रूट. ठीक है, रूट्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. ये कैसे चेक करते हैं, वी विल चेक ऑन द बिहाफ ऑफ द डिग्री ऑफ द इक्वेशन. जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री है, अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 3 है, इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसका zeros क्या होगा, उसके डिग्री क्या होगा, उसके आपके रूट कितने होंगे, 3 रूट होंगे. हाउ कैन वी फाइंड, बाई प्लेसिंग द 3 वैल्यू. इफ़ इट्स zeros आर अगर पुट करने पर अगर जो 0 आते हैं तो हम बोलेंगे वो सारे उनके zeros हैं, वो उनके रूट हैं. तो फॉर एग्जांपल अभी हम चेक कर लेते हैं, जैसे कोई ये चेक करना है कि क्या इसके zeros हैं. जैसे एग्जांपल देख करते हैं, क्वेश्चन इज गिवन, चेक -2 और +2 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल. ये f(x) है, f(x) इज x + 2. चेक 2 और -2 आर zeros. चेक करना है कि 2 और -2 आर द zeros ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. चेक करते हैं एट x बराबर 2. x की जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है हम वहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे +2, इसकी वैल्यू क्या होगा 4. एट x बराबर -2, तो जहाँ जहाँ x है -2 + 2 is 0. In this expression we place the value of 2 or -2. If after solving
इफ़ यू फाइंड इट्स रिजल्ट इज 0 दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये कहेंगे यस इट इज 0। ठीक है, अगर पुट करने पर अगर उसके रिजल्ट 0 आता है तो वो उस एक्सप्रेशन का 0 कहलाता है। इट इज़ क्लियर। अगर पुट करने पर वो उसका रिजल्ट 0 नहीं आता है तो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं इट इज़ द रिमाइंडर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो पुट करने पर जो वैल्यू प्लेस करने पर जो आता है वो उसका रिमाइंडर, अगर 0 हो गया तो 0 कहलाता है। अगर पुट करने पर जो वैल्यू रिमेनिंग रह जाती है तो वो उसका रिमाइंडर वैल्यू कहलाता है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉलिनोमियल एट x बराबर 0 -1 और x बराबर 2। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है x बराबर 0 पे क्या होगा, x बराबर -1 पे क्या होगा और x बराबर 2 पे क्या होगा। हाउ कैन वी चेक, लेट अस स्टार्ट। तो इस एक्सप्रेशन में हम चेक करते हैं सबसे पहला क्या, एट x वैल्यू हम क्या रखते हैं 0। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x की वैल्यू है हम वहाँ पे 0 पुट करते हैं। लिखते हैं f0 जहाँ जहाँ x है, ठीक है, x0 जहाँ जहाँ x वहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो 5 × 0 -4 × 0 होल स्क्वायर प्लस का 3, राइट। 5 × 0 50 हो जाएगा, नो 5 × 0 इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी टर्म वी गेट 0। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। 5 × 0 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 प्लस का 3, सो वी गेट 3। तो f0 पे इसकी वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो गया f(0) पे हमने इसकी वैल्यू प्लेस किया था, इसकी रिजल्ट व्हाट इज द इट्स रिजल्ट, सो वी गेट इट्स रिजल्ट इज 0 व्हेन वी प्लेस द वैल्यू ऑफ x बराबर 0। इट इज़ योर फर्स्ट वैल्यू एट x बराबर 0 इज 3। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड 2, it is over second at x is equal to -1 f -1, okay, where the value of where is x, we place the value of x is equal to -1 -4 -1 whole square and plus 3, राइट। ये माइनस का 5 -4 -1, जब कोई नेगेटिव नंबर है उसके पावर का जो पावर है अगर वो इवन है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव नंबर है उसके पावर अगर ऑड नंबर है तो व्हेन वी सॉल्व वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव। अगर ऑड होगा तो नेगेटिव, इवन होगा तो पॉजिटिव। 1 का पावर 1 होगा प्लस का 3, देन -5 -4 प्लस 3, -4 and -5 is -9 plus 3 is equal to -6. When we place at the value of x बराबर -1 we get -6. Okay, similarly you can also try it. You will try place the value of x is equal to 2, you will get the result. Second question is given, second is like the same question, second and first is the both question are the same. Question number second is given, first one is p of y. P of y, it means y square minus y plus 1, y square minus y plus 1. We have to find the value of p0. We have to find the value of p0, p1 and p2. ओके, आपको y की जगह पहले क्या है, y के जहाँ जहाँ y वहाँ पहले 0 रखना है। तो पहले हम निकालते हैं p0, लिखते हैं एट y बराबर 0। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, पुट p ऑफ 0। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ y है वी यूज़ द 0 इन द प्लेस ऑफ y, 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 ये करेंगे 0, 0 प्लस 1 क्या आएगा, ये आपका 1 आएगा, राइट। अब चेक करते हैं एट, अब y की वैल्यू क्या रखना है 1, ठीक है, p ऑफ 1। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रखते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 माइनस
ये कैंसिल हो गया, आपका +1 बचेगा, राइट। P1 पे आपका क्या हो गया, +1 आ गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एट 2, ठीक है। तो देखते हैं एट 2 पे क्या होता है। तो लिखेंगे P ऑफ 2, 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 × 4 -2 + 1, 4 + 1 5 -2 = 3। इट इज़ योर फाइनल रिजल्ट। तो रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल आल्सो ट्राई। बस सारे क्वेश्चन को इसी में P की वैल्यू 0 पुट करना है, 1 पुट करना है एंड 2 पुट करना है। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी आल्सो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उसको करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, वेरीफाई द whether the following 0 of the polynomial indicate against them। ओके, Px की वैल्यू कितना दिया है, 3x + 1, 3x + 1 इफ x की वैल्यू 1/3 रखते हैं। ओके, चेक करना है क्या इसका जीरोज है कि नहीं। जीरोज की अगर होगा तो इसकी वैल्यू पुट करने पर अगर इसका रिजल्ट 0 आता है तो वी कैन से इट इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट। तो देखते हैं जहाँ x है वहाँ पे -1/3 रखते हैं। एट x वैल्यू हमने क्या लिखा है, -1/3। तो 3 × -1/3 एंड +1, इट इज़ क्लियर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 और ये +1, इसको आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0। इफ वी पुट the given value, if its result is 0, so we can say yes it is the zeros, otherwise it is not। yes, ठीक है, तो ये इसका zeros है। ओके, तो that's all for today, thanks to all of you। again please try to solve the remaining question। if you have any doubt we will discuss in our next lecture। thanks to everyone।